Hare Krishna. Ma'am, unmute लीजिए. Hare Krishna. Sage family would like to welcome His Holiness Bhakti Prema Swami Maharaj for today's session on the topic, God loves you. Do you love Him? We are very fortunate to have association of such a divine personality with us. Maharaj Shah is an ISKCON sannyasi and leader, traveling monk, preaching Vedic education and culture. He has a very active involvement in preaching youth as well as congregation through various school, college, village preaching programs. He preaches in English, Hindi, and Bengali in India, Bangladesh, South Africa, United Kingdom, USA, and many other parts of world. Now I would like to tell Yash sir to share more about Maharaja before Maharaja will address all of us. I would also like to thank Yash sir to invite Swami Maharaj here. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, ma'am, for your kind words for Maharaj. And a very good afternoon to our respected headmistress, ma'am, Mrs. Bhavna Srivastava, ma'am, and Mrs. Neelam Chaudhary, ma'am. Thank you so much for giving me opportunity to be here with Maharaj and all of us, and also to our dear colleague teachers, and also all the participants who joined this wonderful session. So I'm sharing just a short PPT about Maharaj. Then I will request Maharaj to start. So I think my screen is visible, ma'am. Yes, it is visible. So please accept my humble obeisances, Maharaj, and to your lotus feet. His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj Ji is as our headmistress ma'am mentioned, a ISKCON leader and a traveling monk. He born on 31st December 1967, raised in the Gaudiya Vaishnava culture in which the people generally devoted to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. And he did his MBBS in 1993 and took initiation, all three initiations up to sannyas initiation in 2015 from ISKCON only. And first he met with his spiritual master, His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj in 1994. He decided to dedicate himself for the service of whole world to spread this Vedic culture and education to different parts of the world. And some services which is rendered by Maharaj, which is very extravagant. Like in Mayapur, Mayapur is a very wonderful place. We all can visit there. There is a TOBP temple, the largest dome of the world is in construction, almost ready. So Maharaj served there as a head of medical department, then counselor for resident devotees there, and served as the vice president of ISKCON Kolkata temple. And 3 years there, he preached youngsters so that we can save. Maharaj saved so many youngsters from degraded condition. And then as a president of ISKCON from 2004 to 2011, he served, and he headed the project in DeLand, USA, Florida. And now he is the regional secretary of Ujjain zone and chairman of ISKCON Ujjain management. And here are some projects and awards which ISKCON Ujjain temple got under his take care. The huge marble temple in Ujjain, then a midday meal for almost more than 25,000 students every day, an Ayurvedic clinic, Goshala workshop for making very beautiful deities and altars. And yes, ISKCON Global Excellence Award for building such a marvelous temple in just 9 months and 20 days. Such a wonderful. And here we can see Maharaj is preaching in different parts of the world, addressing so many youths in different eminent institutions. And yes, at last, Maharaj in 2013 visited Sagar Sage Group, addressed all the SIRT faculties there. We can see the picture of our Honorable Chairman, Sir, Sanjeev Agrawal, Sir. So in 2013, Maharaj blessed SIRT. Now, if we want to hear such a ravishing pastimes of the Lord and so many things which we can
add value to our children ourselves regarding spirituality, we can follow Maharaj on Facebook. Now I would like to request Maharaj kindly address and shower his blessing on all of us by his lotus mouth. Please Maharaj, accept my humble obeisances. बहुत बहुत यश, बहुत अच्छी बात है, आप इतना अच्छा काम करा रहे हैं और ऐसे संत को ला रहे हैं जो मैं पहले भी उन संत से मिला हूँ। जहाँ तक मैं उज्जैन जब इस्कॉन में आया था, जब ये संत से मुलाकात हुई थी भक्ति स्वामी जी। स्वामी जी आप धन्यवाद, हमारे सभी को ब्लेस करने के लिए आप आए हैं, दिल से आभार। नीलम बहुत अच्छा आप ऐसे प्रोग्राम करा रहे हैं, ऐसे में कराए और ऐसे गुरुओं का संतों का अगर हम सुनेंगे रियल में बहुत अच्छा रहेगा। आप शॉर्ट डे के सभी प्लीज ज्वाइन एंड लिसन। सर मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको देख नहीं पाया, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हम सर का स्वागत करते हैं आज के सेशन में। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे मुझे तो जहाँ पर जैसे कृष्ण के भक्त जहाँ होंगे हम तो वहाँ होंगे ही होंगे ना। जब अच्छे भक्त आपने बुलाया कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो एक अलग आनंद आएगा। आपको कैंपस के अंदर घुसने से कृष्ण का खुशबू लगते होता है। हाँ सर, आप ऐसा लगता है। थैंक यू जी जी। हर जगह में आपका ऑफिस से शुरू करके हर जगह में लाइक कृष्ण नियंत्रण कर रहा है, इस तरह लगता है। पूरे विश्व को वही कर रहा है साहब, वही कर रहा है, वही जो है करा रहा है, वही उसी ने हमारी परीक्षा ले रहा है, वही परीक्षा से पास कर रहा है। इतना बड़ा विपदा जो आया उसी ने परीक्षा ले रहा है हमारी, कि कौन इसमें दिखा सकता है कि वो पॉजिटिव रह सकता है, वो अच्छी सोच रख सकता है, किसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, किसके विचार अच्छे, वो आगे बढ़ेगा। जी स्वामी जी, उसीलिए भगवान ने आपको इतना सक्सेस दिया है। आप धन्यवाद स्वामी जी। आप बताएं हमें अच्छी बातें, हम भी सुनना चाहते हैं। और जी थैंक यू, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश में बोलेंगे हिंदी में? मिक्स बोलो साहब, मिक्स टाइप पे ठीक है। तो हमें जिस तरह स्कूल में आते हैं कि शिक्षक के पास सीखने के लिए, उस तरह गुरु के भी बिना ज्ञान नहीं मिलते हैं। इसीलिए गुरु का आशीर्वाद से ज्ञान मिलते हैं, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान भी गुरु से आता है। इसीलिए गुरु को प्रणाम करके कुछ कर्म शुरू करना पड़ चाहिए। तो मेरा पीछे से गुरु प्रणाम बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं आशा करता हूँ भगवान का कृपा से इतना पैंडेमिक सिचुएशन में भी आप अच्छा हैं, स्वस्थ हैं और भगवान की कृपा से आप भी आगे भी रहेंगे। और ये भी अच्छा है, ये समय सब आदमी जब
डर रहा है तो उसी समय को आप सदुपयोग करना चाहिए, कर रहा है। यू आर यूटिलाइजिंग प्रॉपरली दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मैं इसीलिए आपको साधुवाद जनाता हूँ, क्योंकि आप इस समय को इतना सदुपयोग कर रहे हैं और भगवान के बारे में सुनने के लिए। आज का जो विषय है, भगवान हमको प्रेम करते हैं या हमें भगवान को प्रेम करना चाहिए। गॉड लव्स यू, डू यू लव हिम? तो यह बोलने के पहले तो मतलब भगवान है क्या कुछ? हाँ, ये भगवान हमको प्रेम करते हैं, ये बोलने के पहले कोई ना भगवान है क्या? हाँ ठीक है, थोड़ा वो बात करेंगे। भगवान तो है, जिस तरह जब अच्छा पेंटिंग देखते हैं, पेंटर तो है। जब क्रिएशन है तो क्रिएटर तो है। कोई कोई लॉ है, लॉ में करते हैं। जो जब दुनिया है, कोई ना कोई तो बने हैं। आपको हमारे सामान में जो कुछ है ऑटोमेटिक तो कुछ भी आया नहीं है, कोई ना कोई बने हैं। तो जिसने बना है उनको भगवान कहते हैं। तो भगवान क्यों कहते हैं? भगवान ये शब्द का अर्थ है, जिस तरह धनवान जिसके पास धन है, रूपवान जिसके पास रूप है, गुणवान जिसके पास गुण है, उसी तरह जिसके पास भोग है वो है भगवान। तो शब्द भोग शब्द का अर्थ क्या है? भोग शब्द का अर्थ है संपद। क्यों? अब रास्ते में चलने के समय आपको सामने में 1 किलो सोना मिल गया, आदमी क्या बोलेंगे आपको? वाह भगवान। तो भगवान क्यों बन गया? आपका सामान में 1 किलो सोना मिल गया, ये सोना के लिए आपको भगवान कहते हैं, क्योंकि भगो अर्थात संपद। तो सारी दुनिया का जो संपद जिसका पास है वह है भगवान। और सारी दुनिया का संपद होने के कारण, और उन्होंने ये दुनिया का सृष्टिकर्ता, नियंत्रणकर्ता और सारा दुनिया का भोग करने के मालिक है, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। तो वो इस तरह एक भगवान तो है। अब वो भगवान है कौन, हमारे संग संपर्क संपर्क किया है, ये जानना बहुत आवश्यक है। जिस तरह आप इस सेज के साथ जुड़ा है, सागर कॉलेज इंस्टीट्यूट में है, तो आप नहीं चाहते हैं इसका मालिक कौन है, चलो हम उनके साथ हम संपर्क करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो चाहते हैं अच्छा इसकी इतना अच्छा सेटअप है, कौन आदमी इतना किया है, कौन व्यक्ति है, चलो उनके साथ हम एक अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सब बुद्धिमान व्यक्ति को इतना बुद्धि होना चाहिए और उनको साथ कोई शत्रुता नहीं करना चाहते। तो उसी तरह ये सारी दुनिया का भगवान एक है और उनके साथ हमें अच्छा प्रेम करना चाहिए। तो कैसे प्रेम कर सकते, वो व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है? भगवद गीता में भगवान खुद ने उनके बारे में कहते हैं, मत्तः परतर नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं कृतं श्रुत्य मुनिगणैव। मत्तः परतरं नान्यत्, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, किंचित् अस्ति धनंजय, अर्जुन धनंजय मुझसे थोड़ा सा कोई बड़ा नहीं है, और मयि सर्वमिदं कृतं, ये सूत्र मुनिगणैव, जिस तरह एक मणि है एक धागा से पता है, तो भगवान बोलते सारा दुनिया को मैं बांध लिया, सबका अंदर नहीं हूं। तो एक भगवान तो है। वो भगवान कौन है? उन्होंने भोक्तारांग जिज्ञ तपसांग सर्वलोक महेश्वर, ये सारा दुनिया का मालिक उन्होंने है, सारे लोक का ईश्वर केवल नहीं, उन्होंने महा ईश्वर है, और उन्होंने सारे जीव का परम बंधु है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीव का परम बंधु है। जो व्यक्ति इनको जानते हैं भगवान को, इस तरह भगवान को इस तरह 3 रूप में जानना चाहिए। सारा दुनिया जितना सारे संपत्ति का मालिक है भगवान, और सारी जगह का सबको नियंत्रण भगवान ने कर रहा है, और वो भगवान हमारे परम बंधु है। तो ये जो जानेगा तो उनको लिए और कोई दुख नहीं है। तो अभी पूछना है, और इतना बड़ा आदमी हमको प्रेम करते हैं, बड़ा आदमी के पास जाना है तो मुश्किल है, वो आदमी हमको कैसे प्रेम करते हैं? हाँ,
कैसे हम जान सकते हैं भगवान हमको प्रेम करते हैं? यदि हम जान सके भगवान हमको प्रेम करते हैं तो हमें भी उसके बाद भी कर्तव्य है, हमको क्या करना है। तो अभी पहले हम चर्चा करेंगे क्या भगवान हमको प्रेम वास्तव में करते हैं क्या? वास्तव में भगवत गीता में कहता है ये दुनिया सब भगवान ने चलाता है। माया दक्ष न प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नानक कौन्त्यो जगत विपरिवर्तन। ये दुनिया भगवान का इच्छा से सूरज उठते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, हवा बहती है। जिस तरह हम जब देखते हैं रास्ता में गाड़ी ठीक से चला, ट्रैफिक कंट्रोल ठीक से हो रहा है, तो हमें सोचना हाँ ये ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छा है, गाड़ी कितना अच्छा पास कर रहा है, कोई जगह जम नहीं है। तो यहाँ एक रास्ते में गाड़ी जब अच्छा चलता है तब पता चलता है, अनुमान लगा सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अच्छा है, कोई नियंत्रण कर रहा है। तो ये दुनिया में कितना अच्छा चल रहा है, सूरज रोज उठ रहा है, ऋतु जो परिवर्तन हो रहा है, नदी बहती है, हवा बहती है। तो ये कोई ना कोई तो कर रहा है, नहीं तो क्यों कर रहा है लोग? ये तो थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करते। आज अभी जो बोलोगे 10 साल बाद सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब होगा, अभी जो बता सकते, लेकिन सूरज चंद्र कभी उसको ये आइन को अमान्य नहीं करेंगे। तो किसका डर के मारे उन्होंने इतना सही से काम करा, इतना नियम के हमें इतना कुछ हमको सैलरी नहीं मिला, उसके बाद भी लेट करके कॉलेज में आते हैं, टीचर पनिशमेंट देगा, उसके बाद लेट करके स्कूल में कॉलेज में आते हैं, फिर भी चंद्र और सूरज कभी कोई काम में लेट नहीं करते हैं। तो किसको डरते हैं? वो है भगवान। तो भगवान हमें देखते, भगवान किस तरह का प्रेम करते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, प्राइमरी नीड क्या है। हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान में सबसे ज्यादा क्या है? रोटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना सिर्फ आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन खाने के लिए कोई क्या चाहिए? अनाज चाहिए। हमारे शरीर कहाँ से बनते हैं? हमारे शरीर बनते हैं खाना से। ये खाना कहाँ से आते हैं? हमारे शरीर बनते हैं खाना से। तो गीता में कहता है ये अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे शरीर बनते हैं अन्न से। हम खाना खाते हैं इसलिए शरीर होता है। और अन्नात् भवति पर्जन्यत अन्न संभव, ये अनाज कहाँ से होता है? बारिश होने से। बारिश कहाँ से होता है? यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से बारिश होता है। और यज्ञ कर्म समुद्ध हो, और भगवान की इच्छा से यज्ञ होता है। तो इसलिए हम देखते हैं भगवान के इच्छा से ये वेद आया है। वेद में यज्ञ करने से बारिश होता है, बारिश होने से अनाज होता है, और अनाज का क्या आपने, भगवान यदि ये आयोजन नहीं करते थे हमको नहीं मिलता था खाना। इसीलिए हमारे लिए खाना जरूरी है। भगवान ने कितना अच्छा आयोजन किया है, हमको खाना चाहिए। जिस तरह का आम खाते हैं, खाने के बाद गुठली मिट्टी में डालेगा, वह चौरक पौधा होगा, फिर उसके अंदर आम होगा, फिर आम खाओ, फिर गुठली डालो, फिर पौधा होगा। कितना अच्छा आयोजन है। लेकिन ये यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पानी, जल का रखना क्या है? जल ही जीवन। लेकिन जल छोड़ के खाना छोड़ के तो हम कुछ दिन रह सकते, लेकिन पानी छोड़कर नहीं रह सकते। लेकिन पानी पीने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पानी का स्रोत क्या है? पानी का स्रोत समुद्र है, ओशन। तो आपको जो सागर में, सॉरी भोपाल में इतना बड़ा तालाब है, वो तालाब भी सूख जाएगा जैसे बारिश नहीं होगा। ये पानी कहाँ से आते हैं? समुद्र से। पानी का स्रोत है समुद्र, लेकिन समुद्र का पानी भी खारा है। इस समुद्र का पानी बादल बनाकर, ये समुद्र का पानी को बादल बनाकर, सूरज के माध्यम बादल बनाकर हवा में उनको लेके आते हैं, और उसके बाद भोपाल के ऊपर गिरते हैं। तो भोपाल में आदमी पानी को मिलता है, तालाब भर जाता है।
और जो एक्स्ट्रा पानी है, कुछ पानी मिट्टी के अंदर रहता है, मिट्टी के नीचे चला जाता है, एक्स्ट्रा पानी नदी के माध्यम से समुद्र चले जाता है। इतना बड़ी आयोजन है। यह भगवान यदि नहीं करते थे, हमको पानी मिलता था? और समुद्र का पानी खारा पानी है, उसका नामक सरकार मीठा पानी लेके आते हैं। तो किसने आयोजन किया है? जिसने किया वो हमारे कितना प्रेम करते हैं। और घर में जो पानी रखेंगे, क्या होता है 2 दिन बाद, 1 महीने 2 महीने बाद खराब होता है, उसको पी नहीं सकते। तो समुद्र का पानी खराब क्यों नहीं होता है? हाँ, भगवान ने बहुत नमक डाल के रख दिया, पानी खराब नहीं होना चाहिए। कि भगवान हमारे लिए इतना सोचते हैं, आदमी को पानी चाहिए, इसीलिए समुद्र इतना पानी डाल के रखा, इतना नमक डाल के रखा। और उसको उतना ही नहीं, यह भी वो बादल कहाँ रख दिया है? बादल जाके पहाड़ का चोटियों पर वो बर्फ बना के रख दिया। क्यों बर्फ बना के रख दिया? क्योंकि ये पानी को, हम शहर का पानी कहाँ से आता है? ओवरहेड टैंक से आता है, ऊपर रखना पड़ता है, और नल से घर में पानी आता है। इसी तरह ये कॉन्सेप्शन बहुत पहले से, ये समुद्र का पानी ओवरहेड टैंक पहाड़ का चोटियों के ऊपर बर्फ करके रख दिया। क्यों? बर्फ नहीं बनाएंगे तो उतने रुकेगा नहीं, समुद्र के चोटी पर कैसे पानी रहेगा? बर्फ बना के रख दिया। और दूसरा भी कारण है क्यों बर्फ बना के रख दिया। डीप फ्रीज में खाना क्यों रखते हैं? खराब नहीं होना चाहिए, उसीलिए समुद्र में नमक दे के रखा, और इधर में पहाड़ का चोटी में बर्फ है, उधर में तो नमक नहीं है, वो पानी खराब हो जाएगा, इसीलिए डीप फ्रीज में रख दिया है, वो बर्फ बना के रख दिया, तो वहां खराब नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर व्यवस्था है। और सूरज को कहा इतना हीट देना, रोज पिघलेगा और नदी का फ्लो चलते रहेगा। अब मानो ये व्यवस्था यदि नहीं होता था तो हमको पानी मिलता था क्या? तो जो व्यक्ति ये आयोजन किया है, क्यों इतना आयोजन किया है? क्योंकि उन्होंने हमको कितना प्रेम करते हैं, प्रेम का लक्षण है। हाँ, वो आदमी हमको कितना प्रेम करते हैं, जिसके लिए हम हमारे लिए कितना आयोजन करके रखते हैं। हमको पानी चाहिए, बारिश होना चाहिए, समुद्र का पहाड़ का चोटियों में रखना चाहिए, कितनी व्यवस्था की। जो व्यक्ति ने किया वो भी साधारण व्यक्ति नहीं है, उसकी क्षमता कितना है। और उसके पहले मैं बोलूंगा, क्या आपको लग रहा है ऑटोमेटिक हो रहा है? आपको लगता है कि ऑटोमेटिक हो रहा है? ऑटोमेटिक कौन बोलेगा? ऑटोमेटिक वही बोलेगा जिसका बुद्धि कम है। गांव से एक आदमी आया शहर में, भोपाल शहर में, आके फुहारा देखा है। फुहारा देख के बोला, अरे यह तो भोपाल में तो सब उल्टे है, हम तो बचपन से देखा बारिश तो आकाश से होता है, ये भोपाल शहर बारिश मिट्टी के नीचे से हो रहा है। उसके तो आश्चर्य लग रहा है। और थोड़ा आगे जाके देखे गाड़ी देख रहा है, वो तो आश्चर्य करे, ये सब ऑटोमेटिक चल रहा है, इतना बड़े बड़े गाड़ी, घोड़ा नहीं, बेल नहीं, कैसे चल रहा है? तो ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ऑटोमेटिक वही बोलेगा जिसके बुद्धि कम है। आकाश में जो हवाई जहाज जाते हैं, एक छोटा बच्चा जिसका बुद्धि नहीं, वो बोल सकते हैं ऑटोमेटिक चल रहा है, लेकिन जिसका बुद्धि है वो पायलट को नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी पता है उधर में कोई ना कोई है, उन्होंने चला। तो उसी तरह ये दुनिया में जो ये बड़ी आयोजन है, हमें केवल एक एग्जाम्पल दिया, पानी जितना चाहिए, इसके लिए जो आयोजन है, ये ऑटोमेटिक जो बोलेगा वो बच्चा है, निर्बुद्धिमान है। लेकिन जिसके बुद्धि है, कोई ना कोई नियंत्रण कर रहा है। तो जो व्यक्ति इतना आयोजन किया है, क्यों किया? वो हमको कितना प्रेम करते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चे को पता चला मेरा पिताजी मेरा जन्म होने से मेरे लिए एक मकान बना के रख दिया, बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा के रख दिया, ये किया वो किया, सब व्यवस्था करके गया। तो ये सुनने के बाद पिता माता के प्रति हमें ग्रेटफुल, कृतज्ञता बोध करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आभार प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी तरह भगवान हमारे लिए जो किया है, यहाँ जिनका हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए, कितना प्रेम करते हैं। अच्छा चलो, पानी तो चले गया, पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हवा। हम
ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन इस तरह चलते रहता था, एक दिन ऑक्सीजन खत्म होता था, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता था। क्यों नहीं होता है? सबको पता है, पौधा ने कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये कंडीशन किसने किया उनके साथ, पौधा के साथ? न्यूटन के आइंस्टाइन कि कांग्रेस की बीजेपी, किसने किया उनके साथ कॉन्टैक्ट? ये कितना हमको ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन फ्लो कभी बंद नहीं होना चाहिए। इसीलिए किसी ने हमको ऑक्सीजन सप्लाई देना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड किसी को ग्रहण करना चाहिए। ये आयोजन पहले ने किसने सोचा? इस तरह सोच के उस तरह प्लान किया है। आप सोच लीजिए, जो व्यक्ति हमारे लिए इतना सोचते तो प्लान करके रखा है, वी शुड नॉट बी ग्रेटफुल टू हिम। हमारे भक्त लोग कहते हैं, यदि ग्रेटफुल नहीं होगा तो वी आर ग्रेटेस्ट फूल। जो व्यक्ति इतना किया है उनको ग्रेटफुल नहीं तो ग्रेटेस्ट फूल है हम लोग। तो अभी है ना, हमको पता ही नहीं वो व्यक्ति कौन है, पता नहीं, पता तो करना चाहिए। अब ये आपके इंस्टीट्यूशन में आके देखा, ये हम कौन आदमी किया है, कौन आदमी किया नहीं कि आपको पता नहीं, लेकिन इतना तो बुद्धि है, कोई नहीं व्यक्ति है, मालिक तो है, ये ऑटोमेटिक तो नहीं चलते हैं। कोई यह व्यक्ति है जिसके कारण इस तरह चल रहा है। वो व्यक्ति कौन है? इतना फैसिलिटीज क्यों हमारे लिए? तो आपका कॉलेज में देखो कितना फैसिलिटीज है, स्टूडेंट के लिए रहने के लिए कितना सारा हम आयोजन है। कॉलेज स्टूडेंट कब ज्वाइन किया है, वो जब हॉस्टल में जाते हैं सारे फैसिलिटीज है, कहाँ पर किचन है, बाथरूम है, कॉमन रूम में, और टेलीविजन है, मैगजीन है, पेपर है, टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड है, सारे आपको ज्वाइन करने के पहले सब रेडी है। कॉलेज में जाओ, लेबोरेटरी में सारे फैसिलिटीज है, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, सब कुछ है, घूमने के लिए जगह है, पार्क है। इतना किसने किया? इतना इतने फैसिलिटीज क्यों? क्योंकि आप लोग को खुश रखने के लिए ताकि अच्छा पढ़ाई कर सके, इतना कुछ दिया, फैसिलिटीज दिया ताकि आप पीसफुली स्टडी कर सकते। आप यह पढ़ाई करने के लिए आया है, जितना सारा आयोजन है, अब अच्छा रिजल्ट करके निकल जाएगा, जो अच्छा समाज में अच्छा जगह जाएंगे। तो एक कॉलेज से पास आउट होने के बाद कोई IAS ऑफिसर कोई भी जगह जाएंगे, आप कृतज्ञ नहीं रह गए कॉलेज के ऊपर? ये कॉलेज में हमें इतना फैसिलिटीज थे, इतना अच्छा फैकल्टी मेंबर था जिन्होंने पढ़ाया है, इसीलिए आज हम इस जगह में हैं। कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। तो इसी तरह भगवान जो हमको चीज दिया है, भगवान अभी तो इतना प्रमाण हो गया, भगवान हमको प्रेम करते हैं, यस और नो? हाँ, डॉक्टर गोस्वामी जी बोल रहे हैं, सिर हिला है, झुका रहा है। आप तो वृंदावन वासी है, ब्रजवासी है, आप तो मानेंगे, आपको लेक्चर देना चाहिए था। हमारे बहुत पुराना मित्र है गोस्वामी जी, जब भोपाल जाता है मिलते हैं। तो हाँ, अब तो सब स्वीकार किया भगवान है। अभी यदि भगवान है और भगवान इतना प्रेम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको प्रेम करना चाहिए। अभी मान लीजिए चिड़ियाघर में गया, जू में गया है, आपको पिता माता टीचर ने बता दिया, अच्छा शेर को भी प्रेम करना चाहिए। अच्छा उसके एक हार लेके गया शेर को देने के लिए, और शेर ने प्रेम से आपको पेट के अंदर रख देगा। इस तरह प्रेम करना चाहिए उनको? हाँ, शेर को प्रेम करने का तरीका अलग होता है, कैसे प्रेम करोगे वो भी सीखना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्रेम होता है। अब एक पानी में एक मछली है, उसको मछली को लेकर घर में आके टीवी के सामने बैठे दिया और एसी के अंदर में लता मंगेशकर का गान सुनाना शुरू किया, क्या खुश होगा क्या उन्होंने? नहीं हो। तो इसी तरह वो मछली के साथ वो प्रेम नहीं होता है, मछली के साथ प्रेम होता है पानी में चढ़ना है। तो उसी तरह भगवान जो हमको प्रेम करते हैं, तो अभी हम तो इतना प्रमाण हो गया है, हमें भगवान को प्रेम करना चाहिए। फिर कैसे? वो प्रेम कैसे होना चाहिए ये जानना जरूरत है। कैसे प्रेम करेंगे? क्या कोई तरीका है? हाँ, भगवान का प्रेम करने का बहुत तरीका है। जिस तरह मान लीजिए बच्चा लोग भी बहुत सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ,
पिता माता को खुश करने के लिए क्या तरीका होता है? बहुत सारे तरीका होता है। हाँ, पिता माता जो बोलेगा करना, टीचर जो बोलेगा करना, और बोलने के पहले करना, और ज्यादा खुश होता है। जिस तरह बच्चे लोग क्या करने से पिता माता खुश होते हैं? ज्यादा खाने से। सारा दिन बच्चा खाते हैं, माँ का एक ही कंप्लेन है, मेरा बच्चा खाते ही नहीं। तो बच्चे को, माँ को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? खाओ। खाने से पिता माता खुश होते हैं। हाँ, पढ़ाई करो। हाँ, और सबसे सरल तरीका क्या है? हाँ, मामा पापा पापा बोलना, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं होते। सबसे पिता माता का खुश करने के लिए, मान लीजिए कोई पिता है, आप वो फैकल्टी मेंबर है, जिसका बच्चा है, किसी को बच्चा 1 साल 2 साल हो गया है, उनका बात नहीं करता है, मामा पापा नहीं बोलते, कितना हेडेक होता है उनका। जो बच्चा पापा मम्मी नहीं बोलते हैं, उन्हें कितना टेंशन होता है। और जब बच्चा पापा मम्मी बोलना शुरू करते हैं, पिता माता का कितना कितना जो सुख होते हैं, वो दूसरे को टेलीफोन करते हैं, मेरा बच्चा आज पापा बोला, मम्मी बोला। कितना आनंद होता है। तो केवल पापा मम्मी बोलने से पिता माता खुश होते हैं। तो भगवान भी उसी तरह भगवान को भगवान बोलने से खुश होता है। हमको यदि कोई इस तरह एड्रेस करेंगे, कोई नाम से हम खुश होते हैं। तो भगवान को इस तरह भगवान बोल के पुकारने से भगवान खुश होते हैं। लेकिन यहाँ और एक विचार है। हमारे देश प्रधानमंत्री है, भोपाल में एक एयरपोर्ट बनाएंगे, उसका नाम प्रधानमंत्री एयरपोर्ट लगाएंगे, अगर उनका नाम में एयरपोर्ट है, कौन सा अच्छा होगा? यदि बोलेंगे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट, वो इतना नहीं खुशी होगा जिसको उनका नाम में एयरपोर्ट बनेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट का पोस्ट है, लेकिन उनमें से उनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिससे मान लीजिए महात्मा गांधी एयरपोर्ट, महात्मा गांधी ज्यादा खुश होगा। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट में बहुत सारे प्रधानमंत्री हो सकते, इसीलिए पोस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका नाम। उसी तरह भगवान एक पोस्ट का नाम है, लेकिन वो उनका नाम है। उसका नाम, उनका नाम में बुलाने से भगवान ज्यादा खुश होते हैं। और एक बात है, क्या भगवान का नाम हो सकते? हाँ, भगवान के सभी हो सकते। जब भगवान जो बनाया है दुनिया है, तो दुनिया में जो कुछ है सब कुछ भगवान के पास है। इस तरह कुछ है तो भगवान के पास नहीं हो सकते क्या? इस तरह दुनिया में कुछ भी नहीं है जो भगवान के पास नहीं हो सकता। जिस तरह कोई कोई बोलते भगवान निराकार, हाँ, भगवान का निराकार शक्ति है। जिस तरह मैं बात कर रहा हूं, मेरा बात आप रिकॉर्ड करके रख रहा है, ये शब्द निराकार है, लेकिन मेरा शब्द है, लेकिन मेरा आकार है। तो मेरा दो शक्ति है, मेरा एक निराकार शक्ति है और मेरा एक साकार रूप है। सूरज का आकार है, उसका निराकार शक्ति है ताप, हीट। तो हर वस्तु का कोई निराकार साकार दोनों अलग रूप होते हैं। भगवान का भी दो प्रकार शक्ति होता है, एक निराकार शक्ति और साकार रूप। तो उनका साकार जब रूप है, उनका नाम भी बहुत है, और नाम होता है उनका काम अनुसार, गुण कर्म अनुसार। तो भगवान जो सारे दुनिया का मालिक है, मालिक होने के नाते उनका बस सारे गुण सारे ऐश्वर्य है। इसीलिए सारी चीज होने के कारण क्या होते हैं? हाँ, हाँ। जिस तरह मान लीजिए आपके कॉलेज में एक बच्चा, कोई एक फैकल्टी मेंबर जा रहा है और संजीव जी जा रहा है, किसके पीछे ज्यादा आदमी जाएगा? क्योंकि उन्हें सबसे बड़े आदमी है, उन्हें क्षमता ज्यादा है, सब उनको आकृष्ट होगा। तो उसी तरह भगवान सबसे बड़े से बड़े आदमी है, तो उन्हें सबका आकृष्ट करते हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। और उन्होंने सबका आनंद देते हैं, इसीलिए आनंद जहां से आता है, आनंद को क्या बोलते हैं? आराम। आराम शब्द कहां से आता है? राम। तो राम अर्थात आनंद, राम, इतना सारे आनंद, इसीलिए होता आराम। तो आराम उनका हराम हो गया, तो इसका अर्थ क्या है? तो राम शब्द अर्थ क्या है? राम अर्थात आनंद। रमन्ते जोगिनो अनंत सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदनाशो परम ब्रह्म अभिधेयते। पद्म पुराण में कहता है भगवान का नाम राम इसीलिए है
क्योंकि बहुत बहुत मुनि जुगी ऋषि भगवान का नाम लेके आनंद लेते हैं, इसीलिए भगवान का नाम है राम। इस तरह भगवान का बहुत सारे नाम है। उन्होंने सबका दुख कष्ट नाश कर देता है, इसीलिए उनका नाम है हरि, हरण कर लेते हैं। इसीलिए हाँ, कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, आप क्या बोलेंगे? ओ डॉक्टर बाबू, इस तरह बोलने खुश हो गया। तो जिसको जो जिस तरह डॉक्टर लिखते हैं उस शब्द में डॉक्टर लिखते हैं। आजकल सीए लोग क्या लगता है, सीए फलाना लिखते हैं, उसको नाम का पहले सीए लिख देते हैं, देखा था देखो मैं सीए पास कर रहा हूँ। इंजीनियर भी इस तरह लिखते हैं। तो इस तरह भगवान को भी उस तरह उनको उस तरह संबोधन पसंद करते हैं। तो भगवान सबको आकर्षण करता है, इसलिए कृष्ण नाम उनको पसंद करते हैं। भगवान सबको आनंद देते थे, राम नाम उनको पसंद है। उन्होंने सबको दुख को हरण कर लेता है, इसके लिए उनका नाम हरि है। तो भगवान का बहुत नाम है, अनंत कृष्ण नाम अनंत महिमा, नारद आदि व्यास देव दीते नरसिंह। भगवान का नाम अनंत है, नारद व्यास देव भी उनका पता नहीं कितना है, तो कितना नाम है। तो इसीलिए मुख्य मुख्य नाम है राम कृष्ण हरि आदि। इसीलिए वेदों में लिखा है कलि युग के लिए भगवान को प्रसन्न करने कोई भी नाम ले चलेगा, लेकिन सबसे तरीका सरल में दिया है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नाम करना है। इसके अंदर इतना आनंद है, दुख कष्ट को तो सवाल ही नहीं उठते। कोका कोला कंपनी का मालिक यदि सारा दिन ना 5 मिनट कोका कोला करेगा, तो पत्नी उनका साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे, क्या हुआ तुम्हारा? कोका कोला कंपनी उनका मालिक बोला है तुम्हारे कोका कोला से तुम्हारे इतना मकान बना दिया, सब कुछ, उनका 5 मिनट नाम नहीं ले सकते, तो उन्होंने उनका साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएगा। लेकिन भगवान का नाम कितना दिन से ले रहा है, कोई आदमी बोलेगा उसको साइकेट्रिस्ट लेके जाओ? कोका कंपनी जो नौकरी करते हैं, रास्ते में आने के टाइम तालियां बजेगा कोका कोला, सब पागल बोलेगा उनको। और हरे कृष्ण नाम वाले रास्ते में चलेगा, सबको प्रणाम करेगा उनको, अरे क्या हमारा भक्त है। तो यह चीज पता चलता है भगवान का नाम कितना मधुर है, भगवान को खुश करने के लिए तरीका कितना सरल है। तो इतना कहना है भगवान है, भगवान हमको प्रेम करते हैं और हमें उनको प्रेम करना चाहिए। जिस तरह मान लीजिए एक माँ बच्चा को प्रेम करते हैं, वो बच्चा माँ को प्रेम नहीं करेगा, माँ का कितना कष्ट होगा। ये तो कोई बच्चा लोग है, मान लो ये लोग को आप दिल्ली में पढ़ाई करने भेज दिया, मामी में जाने के समय एक मोबाइल दिया, बच्चा ये मोबाइल लेके जा, और बच्चे ने मोबाइल से मामी छोड़ कर दूसरे सबके साथ बात करते हैं, मामी का हालत क्या होगा? बच्चा को मोबाइल क्यों दिया? उनके साथ बात करने के लिए। तो भगवान जिस तरह मान लीजिए आप कॉलेज में ज्यादा से फैकल्टी मेंबर में देख रहा हूँ, आपको इतना फैसिलिटीज क्यों दिया? सैलरी दे रहा है, गाड़ी वाड़ी कितना कुछ फैसिलिटीज दे रहा है, क्यों दिया? क्योंकि आपको सारी एनर्जी ये इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए करना है। संजीव जी नहीं चाहता है उनको समुद्र में जाके हवा करो बातास पंखा से, उन्होंने चाहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाओ, इसको नाम ज्यादा जगह फैले, स्टूडेंट को आगे जगह, उन्होंने ये चाहते हैं। तो उसी तरह भगवान भी इस तरह चाहते हैं। तो हमें ये भगवान को हम कौन प्रसंग में वर्णन कर रहा था धर्मेंद्र कृष्ण को? कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हाँ, ये भगवान को सेवा करने का तरीका इतना बहुत सरल है, भगवान का नाम करना है। ये जो खुश करने का मैं तरीका बोल रहा हूँ, जिस तरह आपका बच्चा दिल्ली में भेज दिया, मोबाइल दिया, अरे मोबाइल क्यों दिया? आपके साथ बात करने के लिए। आपको जो कॉलेज में जो फैसिलिटीज दिया, वो फैसिलिटीज आपको कॉलेज में आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सारे फैसिलिटीज लेके आपको दूसरा, आपको खुद की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कर रहे हैं, तो मालिक खुश होगा कभी? और कॉलेज आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो उसी तरह भगवान ने कान दिया, क्यों दिया? सिनेमा का गान सुनने के लिए कि भगवान का नाम सुनने के लिए? भगवान आंख दिया उनको देखने के लिए, दूसरा कुछ देखने के लिए। तो हमें भगवान आंख दिया, भगवान को नहीं देखे दूसरा को देख रहे हैं। कान दिया, भगवान का नाम सुन रहे हैं, दूसरा को देख रहे हैं। हाँ,
पेड़ दिया, भगवान के मंदिर नहीं जाके दूसरा जगह जा रहा है। अब मानो ये इंस्टीट्यूशन का जो मालिक उनको देख रहा है, मैं जितना फैसिलिटीज दिया हूँ, एक कॉलेज का उन्नति नहीं कर दूसरा जगह में लगा रहा है, कितना दिन नौकरी रहेगा आपका? कितना दिन रहेगा? और जो पूरा एनर्जी दे रहा है उनकी फैसिलिटी बढ़ते जाएगा। तो उसी तरह भगवान का राज्य में सेम लॉ एप्लीकेबल है। भगवान जितने फैसिलिटीज दिया है उनका सेवा में लगाएंगे, भगवान और फैसिलिटीज देते रहेंगे। तो ये ज्यादा बड़ी कोई काम नहीं है, केवल भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम लेने से भगवान खुश होते हैं। जिस तरह पिता माता खुश होने से बच्चे को सब कुछ मिल जाते हैं, उसी तरह भगवान खुश होने से हमको जो कुछ चाहिए, यहाँ तक कोरोना का भी डरना नहीं चाहिए डर नहीं रहेगा। भगवान खुश होगा तो सब कुछ हो जाए। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, आप सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप भगवान को मानते हैं, यह भी मानते हैं भगवान आपको प्रेम करते हैं, तो इसीलिए हमें भगवान को प्रेम करना चाहिए। और प्रेम करना बहुत सरल है, केवल भगवान का नाम लेना है, बहुत सरल है, ये कोई कठिन काम नहीं है। ये आप भगवान का नाम लेते रहना, आप खुद नहीं देख सकते इसका फल कितना मिल रहा है। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। जस्ट ने मैं इसको बताया था जो कुछ Anyone has any question to ask from Maharaj ji? Please ask. Anyone has? जी sir. हरे कृष्णा। हाँ, आप क्वेश्चन क्यों पूछेंगे, आप आंसर दीजिए। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज महाराज एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म है अभी दे आर गोइंग टू स्टार्ट द स्पिरिचुअल थिंकिंग लाइक दैट। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब भी कोई भजन करने या भगवान से जुड़ने यहाँ पे हर तरह के वो लोग हैं कि जैसे साकार और निराकार आपने बताया, जैसे हमारे मुस्लिम भाई जो है निराकार में बिलीव करते हैं, हम लोग साकार में करते हैं। पाथ वही है, सेम वही है, वही डेस्टिनेशन फाइनल है। पर जब हम लोग प्रयास करते हैं किसी चीज का तो मन नहीं लगता। 90% लोगों का बिल्कुल मन नहीं लगता। भजन करने बैठो नींद आ जाती है। अब अरे भगवान भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर नींद ऐसे। तो ये प्रिलिमिनरी स्टेज मन एकदम सरेंडर क्यों नहीं होता भगवान के चरणों में, जबकि वो बनाया भगवान का ही है सब। वेरी गुड। मेरे गुरु महाराज ये प्रश्न को उत्तर दिया था, बोले तुमको टीवी देखने को भी नींद आता है कभी? गुरु महाराज, एक भक्त ने गुरु महाराज को पूछा, तो गुरु महाराज टीवी देखने नींद आता है? खाने के टाइम नींद आते हैं? नहीं आते हैं। तो खाने के टाइम किसी को नींद नहीं आता है, क्योंकि खाना अच्छा लगता है, टीवी देखने अच्छा लगता है, इसलिए नींद नहीं आता है। जब कोई चीज अच्छा नहीं लगता तभी नींद आता है, जो अच्छा लगता है तब नींद नहीं लगता है। जब मेरा बचपन में मेरा मैथमेटिक्स करता तो रात में कोई नींद आती, इंग्लिश पढ़ने से नींद आती है, तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। तो इसी तरह आप जो कहा है भक्ति भजन करने की, क्योंकि हम शुरू किया है, शुरू में थोड़ा इंटरेस्ट कम लगेगा। जिस तरह बच्चे लोग खेलने दो और पढ़ाई करने दो, कौन सा करने ज्यादा लास्ट चलाएगा? खेलने में ज्यादा, खेलने ज्यादा, वीडियो गेम सारा दिन देखते। लेकिन जो पढ़ाई में मजा आएगा ना, तब उनका बोलना नहीं पड़ेगा। जब बड़ा हो जाएगा ना, तब अब नहीं बोलना पड़ेगा। तो शुरू में थोड़ा लगेगा, लेकिन एक बार इंटरेस्ट लगा तब अब नहीं लगेगा। या फिर ये कहें कि मन को मालूम है कि अगर सरेंडर हो गया तो फिर कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, सही। गुरु महाराज हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर प्रेमलाल जगाती इंदौर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है, जी गुरु महाराज, जो ईश्वर है, ईश्वर एक है, फिर ये इतने अनेक रूप क्यों हैं? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि साधना की शुरुआत, पहली स्टेप कौन सी होती है और उसे कैसे शुरू किया जाए? थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान एक बहुत क्यों? हाँ, भगवान, ये शास्त्र इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है। जिस तरह मान लीजिए एक प्रधानमंत्री है, उनका घर में एक रूप होता है, ऑफिस में एक रूप होता है, क्लब में जब जाते हैं उसका अलग एक रूप है, घर ऑफिस में जब जाते हैं ना, हाँ, पार्लियामेंट में सर, यस सर,
जब क्लास में जाता है मिस्टर अमुक, और घर में मामी बोला है क्या रे पिछो, तो अलग अलग कुछ निक नाम हो सकते हैं उनका। तो लेकिन व्यक्ति एक ही है। तो भागवत में कहते हैं वदंती तत्व सत्यम जत ज्ञानम अज्ञान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। जिस तरह सूरज का जो ताप है ये निराकार रूप है। सूरज एक गोलक है, सूरज के अंदर सूर्य देव भी रहते हैं। तीन अलग अलग इस तरीके हम देख सकते, तीन रूप देख सकते। एक समुचा और खुशबू बहुत देखने बहुत अच्छा लगता है, वो भी एक रूप है। आंख बंद करें और जब आंख खोल के और जब नाक खुशबू तो बहुत अच्छा है, और जब खाते हैं वाह कितना स्वादिष्ट है। वो तो अलग अलग वस्तु एक ही है। एक पहाड़ बहुत दूर से क्या देखेंगे, एक काला बादल की तरह। नजदीक में जाएंगे बहुत पेड़ पौधा है, और अंदर में जाएगा क्या देखेंगे, बहुत चिड़िया पक्षी पशु जानवर है। तो एक ही वस्तु है, ज्ञान का मात्रा अनुसार अलग अलग देखते हैं। जितना दूर से देखेंगे अलग देखेंगे, नजदीक में। और एक क्रूड एग्जांपल है, 3 बच्चा को पिताजी ने रात में रेलगाड़ी दिखाने के लिए, तो दूर से रेलगाड़ी आ रहा है, लाइट देख के एक बच्चा भाग के गया, माँ रेलगाड़ी देख के, वो क्या देख के गया, ज्योति लाइट ज्योति देख के चले गए। और दूसरा बच्चा समझ से रेलगाड़ी चले गया, और दूसरा बच्चा माँ मैं रेलगाड़ी देख, वो भाग के गया। और एक बच्चा तो उनको लेके पिताजी ने स्टेशन में गया, गाड़ी जब रुका अंदर में घुमा के देखा, यह आदमी यहाँ मूंगफली खाते हैं, यह अखबार पढ़ते हैं, यह बैठते हैं। तो उनका ज्ञान है संपूर्ण। तो ये जो 3 स्तर में आदमी, 3 एक ही रेलगाड़ी है, 3 व्यक्ति का ज्ञान 3 स्तर में। तो जो बच्चा देखा है एक लाइट है, तो उसका ज्ञान है थोड़ा कम है। उस तरह से भगवान को ज्योति रखता है, उसका थोड़ा कम। लेकिन और जो नजदीक में है उसको देखो भगवान को परमात्मा देखते हैं। और जब भगवान स्वरूप में देखेंगे उसका ज्ञान है पूर्ण। इसी तरह 3 तरीके आप कर सकते, किसी को कोई गलती नहीं है, लेकिन ज्ञान का अलग अलग लेवल है। जिस तरह डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी में 1000-2000 वर्ड रहते हैं और एक ही मीनिंग होते हैं, और ऑक्सफोर्ड चैम्बर डिक्शनरी में सारे शब्दों का एंटोनाइम साइनोनाइम से शुरू करके सब है, उसका रूट कहाँ से वो सब कुछ लेगा। तो कोई डिक्शनरी गलत नहीं बोल सकते, लेकिन सब एक भी नहीं बोल सकते। उसी तरह परम तत्व आपको जानने का अलग तरीका, एक ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो साधक के ज्ञान के मात्रा अनुसार अलग अलग है। अभी कौन कहाँ से शुरू करेंगे उनको ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे शुरू कर सकते। निर्विशेष ब्रह्म जी का ध्यान, उसके बाद परमात्मा, उसके बाद भगवान। लेकिन ये रास्ता है सीढ़ी में उठने की तरह है, और एक वो बिल्डिंग में लिफ्ट भी है, लिफ्ट में चलना है, डायरेक्ट भगवान को भक्ति करना है, भगवान का ये लिफ्ट में जाना है। लेकिन निराकार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ध्यान, उसके बाद धीरे धीरे सीढ़ी में जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन भगवान को भक्ति करना है, ठीक है, रामचंद्र का भक्त हनुमान, बस बैठ के राम का नाम लेते हैं, बस उनका मार्ग में चलेंगे तो लिफ्ट की तरह है बस, और कष्ट नहीं करना है उसको, हम छूना नहीं। हनुमान ने बैठ के निराकार ब्रह्म का ध्यान किया, उन्होंने जिस दिन रामचंद्र को देखा उसी दिन छलांग लगा उनकी सेवा करने के लिए। और जो ध्यान उनका है राम नाम कर, राम राम राम, बस। तो आपका प्रश्न है कौन सा करना चाहिए? हाँ, ये अलग अलग तरीके हैं, जिसको जो है जिस तरह में आपका कॉलेज में कहाँ से पढ़ाई शुरू करना चाहिए। आपको देखो इंजीनियर, डॉक्टरी, कितना सारे मैनेजमेंट, कितना सारे ब्रांच है, और वो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जिसको जो है वो टीचर बताएंगे कहाँ से शुरू करना है। इस क्लियर? थैंक यू। हाँ, 4 हाथ उठे हैं। ओके जी, अगला प्रश्न अर्पित जी, आप पूछिए। अर्पित, हाँ अर्पित जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण महाराज। हाँ
थैंक यू सो मच महाराज फॉर दिस वंडरफुल क्लास। महाराज मेरा प्रश्न था कि कोरोना काल में जैसे हम लोग बहुत सारे रिलेटिव्स से बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बॉडी लीव भी कर रहे हैं, मतलब उनका डेथ हो रहा है रिलेटिव्स वगैरह। तो वो लोग का भगवान की तरफ से जो विश्वास है वो काफी कम होता जा रहा है, तो महाराज उन लोगों को कैसे समझा सकते हैं कि हाँ, ये स्वाभाविक है। कोरोना जो उपद्रव, महामारी को उपद्रव हो रहा है, थोड़ा तो दुख कष्ट होते हैं, लेकिन एक बात समझना चाहिए, इस तरह कोरोना का महामारी ये पहला बार नहीं है। हम इतिहास देखेंगे 100-200 साल बाद इससे बहुत बड़ा कोरोना महामारी होते हैं, लाखों लाखों करोड़ों आदमी मरते हैं, लेकिन हम तो भगवान की कृपा से ये बात बहुत कम हुआ है। इस तरह महामारी अलग अलग आपको इतिहास में देखा कितना हुआ है। ये प्रकृति के नियम में इस तरह होते हैं, लेकिन भगवान का कृपा से ये बात बहुत सावधानी पहले से लिया है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, बहुत कुछ कारण, मेडिकल फैसिलिटी डेवलपमेंट कारण वहाँ विपद बहुत कम हुआ। फिर भी आपको जो कहना है आदमी का विशेष नष्ट होता है, विशेष नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सोचना चाहिए हो सकते और बहुत बड़ा कुछ समस्या हो सकते थे। भगवान ने हमको बहुत कृपा किया, वहाँ से बचा, क्योंकि बहुत बड़ा समस्या हो सकता है, भगवान ने कृपा करके हम बचा। जिस तरह हम देखते हैं सीता देवी का कितना कष्ट हुआ है पूरा जीवन, तो सीता देवी कभी कंप्लेन किया नहीं, मैं रामचंद्र के साथ शादी करने के लिए मैं इतना समस्या हो रहा है, दूसरा के साथ शादी करता था, इतना कोई समस्या नहीं हो रहा, ना जाना पता वन में, ना चाहे कोई वसूल लेके जाते। भक्त को भी इस तरह नहीं सोचते। और पंच पांडव को देखो, भगवान का भक्त होने के कारण कितना साल, 13 साल राज्य को बोलते हैं जंगल में घूमने पाए। वो लोग को भी एक दिन के लिए नहीं बताया कृष्ण आपका भक्त होने के लिए हमारे इतना कष्ट। भक्त लोग को भी इस तरह नहीं, लेकिन हाँ इस तरह थोड़ा तो कष्ट होते हैं, लेकिन कष्ट के बाद जब उपलब्धि होते हैं तब आनंद होता है। जिस तरह कॉलेज में जब परीक्षा होता है, बड़ा बड़ा परीक्षा होता है, पास होता है तब आनंद होते हैं। इस तरह आज एक विपद आया है, अभी चल रहा है, लेकिन हम भगवान के शरण में जाएंगे तो बाद में हम देखेंगे नहीं, भगवान जो किया है इसको हमको दूसरा कुछ शिक्षा देने के लिए इसके अंदर अच्छा कुछ है। तो हमें ये स्थिति में हमें और ज्यादा भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान के साथ नाराज होने से तो फायदा नहीं। मान लीजिए यह पिता माता में देखने स्कूल में सामने आपको बच्चे को थप्पड़ लगाना तो नहीं चाहिए, कोई कोई माँ इससे बच्चे को थप्पड़ लगाते हैं, तो बच्चे को क्या करना चाहिए? गाली देना चाहिए? वो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे को थप्पड़ लगाने से बच्चे क्या करेंगे? माँ का पैर पकड़ माँ इस तरह बोलेंगे, और तो बच्चे माँ क्या करेंगे? उसका गोद में उठकर चुमा लगा और माँ रोना शुरू करेगा ना, गलती किया है। लेकिन वो बच्चा यदि उनका जब विरोध करेगा क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चा को मामी यदि डांटेगा ये सोचना चाहिए मामी उनका अच्छा चाहते हैं, तो बच्चा को मामी को पार और ज्यादा पकड़ना चाहिए, तो मामी गोद में उठा लेंगे। इससे भगवान हमारे परम प्रभु है, जो कुछ कर रहे हैं हमें अच्छा करेंगे। जो महामारी दिया है भगवान के चरण को और ज्यादा पकड़ना चाहिए, तो भगवान भी हमको गोद में उठा लेंगे। शत्रुता करके तो भगवान के साथ, भगवान तो है, उनके इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो उनके साथ शत्रुता करके हमको क्या मिलने वाला है? हमें उनके चरण में शरण लेंगे तभी हमको समस्या से, उनके साथ विरोध करके कैसे हो सकते? लेकिन मैं फिर कहूंगा स्वाभाविक है, दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन दुख होने के बाद भगवान को जब और ज्यादा शरण लेना। अब समझते हैं, मैं फिर वो उदाहरण दूंगा। जो बच्चा जब पिता माता बच्चे को डांटते हैं, जिस तरह हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ी इतना कठिन था, तो हमारे फ्रेंड लोग बोलते हैं मेरा यदि कोई बदमाश बच्चा होगा उसको मेडिकल में एडमिशन कराऊंगा। तो इस तरह पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। और बच्चा और माँ का पिता माता का पनिशमेंट बच्चा को कभी तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब समझते हैं हाँ मेरा पिता माता यदि इस तरह शासन नहीं करते थे तो मैं आज यहाँ नहीं आ सकती। तो आप भी हो सकते पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा इसको पीछे कोई अच्छा ही कुछ था। ठीक है अर्पित जी?
Next question from Sanjeev Sharma sir. जी, Okay. हरे कृष्ण स्वामी जी। Thank you. दो छोटे से प्रश्न है मेरे। जैसे हम सब ईश्वर की संतान हैं, फिर भी हम में से कुछ लोग कम खुश और कुछ ज्यादा खुश होते हैं, कुछ की परेशानियां कम, कुछ की ज्यादा होती हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये इसका उत्तर है भगवत गीता में है। भगवत गीता में से जानते हैं जन्मांतर, इनकारनेशन, री इनकारनेशन। हाँ, तो ये जन्मांतर को यदि हम मानेंगे तो पूर्व जन्म का कर्म इधर में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जिस तरह मान लीजिए आपका कॉलेज में गांव का स्कूल के बच्चा लोग सब तक एक कॉलेज तक नहीं आ पाता है, कोई प्राइमरी तक, कोई हाई स्कूल तक, कॉलेज कोई पास हो जाता है, क्योंकि उनका पूर्व कर्म फल अनुसार आगे क्लास में चले जाते हैं। क्लास 9 में जिस तरह 10 उस तरह पिछले कर्म का फल आगे मिलते हैं, उसी तरह पिछले जन्मों का कर्म फल ये जन्म में मिलता है। जिस तरह किसी को अमीर आदमी के घर में जन्म हुआ है, कि गरीब, किसी को जन्म से विकलांग है, कि ब्लाइंड है, तो ये है समझना चाहिए पूर्व जन्म का कर्म। सर मेरे जो प्रश्न, इस प्रश्न का जो उत्तर था इसी चीज पे आके अटका हुआ था। इससे पहले भी वो जो मुझे जवाब मिला ना, वो यही मिला कि जो पूर्व जन्म के जो भी कर्म होंगे उससे आपके कुछ चीजें रहती हैं, इफेक्ट करती हैं। लेकिन सर हम तो ईश्वर की संतान है ना, हमारे लिए सब बराबर है। ईश्वर के लिए तो हम सब। आपको म्यूट हो गया। एक पर ईश्वर की कृपा कम, एक पे ज्यादा क्यों? हाँ, हम सब ईश्वर की अगर संतान है तो हम सब पे बराबर होनी चाहिए। पूर्व जन्म में जो था वो था, मानते हैं सर। लेकिन सर अभी तो हम नादान है साहब, इतनी परेशानी है, जैसे किसी पे कम किसी पे ज्यादा, ऐसा क्यों? वेरी गुड। जिस तरह मान लीजिए हमारे देश का सरकार है, सब कुछ समान होना चाहिए, तो सबको मेडिकल कॉलेज में IIT में क्यों एडमिशन नहीं देते हैं? क्योंकि जो अच्छा पढ़ाई किया है वो सरकार चाहते हैं सब IIT MBBS लॉ सब बनेगा। लेकिन आप क्लास 12 तक 19-20 साल तक कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे और 20 साल में जाके बोले सबको IIT में चांस देना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। नहीं, आपको हम सब आपका देश का जनगण है। नहीं भाई, उसीलिए तो पहले से बताया, पहले से क्लास 5 से अच्छा पढ़ाई करोगे, सबको हम IIT कराएंगे। तो हाँ, इस तरह ही है, जो IIT में चांस नहीं मिला है उसको मूर्ख बना पड़ा, कोई दूसरा कॉलेज में है वहां से भी अच्छा कर सकते हैं। हाँ, आपका सागर कॉलेज IIT की तरह नहीं है, लेकिन सागर कॉलेज से पास करके IIT कॉलेज से अच्छा कुछ कर सकते, ये भी स्कोप है। इस तरह नहीं जो सागर कॉलेज के स्टूडेंट को भी IIT को टॉप नहीं कर सकते, इस तरह तो नहीं हो सकता जी, स्कोप तो है जी। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं, जैसे कि ईश्वर ने पूरा समय 24 घंटे बनाए, 365 दिन बनाए हैं, फिर भी हम कभी कुछ समय अच्छा है, कुछ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों मानते हैं? जैसे हम शादी करना है, शुभ मुहूर्त में ही शादी करेंगे, मतलब ऐसा क्यों मानते हैं? ईश्वर ने अगर समय बनाया तो सब समय अच्छा होना चाहिए। ना, सब समय अच्छा नहीं होता, एक क्यों होता है, अलग अलग आदमी के। जिस तरह मान लीजिए ये जो ग्रह नक्षत्र है ना, वो अलग अलग, हमेशा आप रात में देखेंगे पोजीशन चेंज हो रहा है, तो अलग अलग पोजीशन में जिसको जो पोजीशन है वो कंट्रोल करेगा। अभी मान लीजिए देश में अलग अलग पार्टी है, कौन पार्टी जब कंट्रोल करेगा उनका पॉलिसी तो चलेगा। तो जो अलग अलग समय अलग अलग ग्रह नियंत्रण करेगा, तो अभी हमें वो रास्ता में जाना नहीं चाहिए। मान लीजिए ये रास्ता है, आपको GPS में दिखाता है ये रास्ता है लंबा, ये रास्ता है, आप अभी कौन रास्ता में जाना है? तो ये हमारे ऊपर इंडिपेंडेंस हमारे संपूर्ण है, हम कौन रास्ता में ग्रहण करेंगे। सरकार में देखा, देखो ये काम करोगे तो जेल डालना है, ये इस तरह एक कॉलेज में अच्छा पढ़ाई करोगे, इस तरह कलेक्टर बनोगे, सब हमारे समझ में दिया है। लेकिन हमारे वो इंडिपेंडेंस हम कौन सा काम में लगे थे, इज अप टू अस। मान लीजिए आप देख लो, आप कॉलेज के फैकल्टी मेंबर है, अब सब स्टूडेंट को चाहते अच्छा कुछ करे, लेकिन सब तो अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन सब स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहा है, क्या आपको दोष दे सकते क्या? कोई किसी का पक्षपात किया गया? और एक कॉलेज में इस तरह की फैसिलिटीज है जिन्हें ये 2 बच्चों को अच्छा बनेगा, सबको फेल कराएंगे। ये कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करके फैकल्टी मेंबर से सब चाहते हैं ये कॉलेज सबसे अच्छा होगा और इंडिया की सारा दुनिया में बेस्ट होगा, ये तो चाहते हैं। लेकिन फिर भी कोई बच्चा खराब रिजल्ट करता है, उसके लिए टीचर को बदनाम कर सकते क्या? नहीं होना चाहिए। उन्होंने आपका ये कॉलेज से उस तरह करने का फैसिलिटीज है जो उनका एनर्जी को पॉजिटिवली लगाएंगे, लेकिन कोई इसको दुरुपयोग करेगा,
उन्होंने उनका खुद के भाग्य को नष्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए टीचर, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन को इंजम नहीं लगना चाहिए। थैंक यू स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। प्रश्न तो बहुत हैं और भी लोगों के, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आई वुड से दैट वी विल गिव योर नंबर टू देम and they will I am very sure that you will satisfy their query. So thank you very much. Mahvish ma'am, digital certificate share kariye. Excuse me ma'am, Yes sir, please boliye. there is one very beautiful video of Maharaj with our honorable CMD sir. Okay, So please like please, to please. ask Please. Dharmendra Mahvish Krishna ma'am, Prabhuji, please just kindly share. Okay, Kindly share that Please, video please, so that please. others can also relish sure. that wonderful presence of CMD sir. Thank you, Yash sir, for sharing such a beautiful video. Mahvish ma'am, please share digital certificate. By the time I would thanks a lot to Swamiji Maharaj, and because of his, presence, our CMD sir also could not stop himself and he presented himself. Swamiji reassured the love that all of us already have within us for God. In this pandemic,
and he gave very simple examples to just satisfy ourselves. He satisfied our query with simple examples, and I enjoyed thoroughly this session, and I hope that all the audience also enjoyed this session thoroughly. बहुत ही आनंदमय था स्वामी जी महाराज, और हम चाहेंगे कि आप फिर से आएं और हमारे ऑडियंस को, हमारे सेजियंस को इसी तरह भक्ति भाव से वापस से लबरेज कर दें। धन्यवाद आपका स्वामी जी, बहुत बहुत। ये एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके लिए, एक सर्टिफिकेट जो हम आपको थैंक यू। प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। सर्टिफिकेट धन्यवाद सर। यस सर, आप भी कुछ बोलना चाहें तो मैं इस्कॉन please। उज्जैन से मैं अनुरोध करूंगा, ये इस्कॉन उज्जैन आपका मंदिर है, आप सब लोग यहाँ आ सकते और आना चाहिए। यह सुंदर गेस्ट हाउस है, आप लोग पूरा सबके एक साथ एकोमोडेट हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वी हैव गेस्ट हाउस 26 rooms we have, so anytime you can come, we will try to serve you. Thank you so much, Maharaj, Thank you so that much. you have joined just by my humble request. I am very grateful unto your lotus feet that you have joined and showered such a wonderful blessings and your divine presence with all of us, all our sagians. You made our day with a word sage. Now we are feeling like sage. We are totally God conscious. We are totally Krishna conscious. Thank you so much, Maharaj, for accepting my humble request at your lotus feet. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you everyone.